the final day will get underway, and that's going to be the 400 meters hurdles. अब शुरुआत हुई है। लेन नंबर 5 और लेन नंबर 6 पर नजर रखिए। निखिल भारद्वाज और धवल उत्तेकर, साथ में 4 में हरदीप और इस समय टक्कर चल रही है रुचित मोरी के बीच। हरदीप और रुचित मोरी काफी करीबी मामला है। क्या रुचित मोरी गोल्ड ले जाएंगे? ओहो, बहुत क्लोज फिनिश। This might give you a faint idea. 5 is struggling, that's Nikhil Bharadwaj. Likewise 6, Dhaval Uttekar. And what a comeback this is for Ruchit Mori of Gujarat. रुचित मोरी 50.97 के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। पंजाब के हरदीप को सिल्वर मेडल मिला है। महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स का फाइनल। मिलिंद, अगर ऑन पेपर और ऑन फॉर्म देखें, विद्या रामराज की फॉर्म बहुत सही है। पीटी उषा की बराबरी की 2023 में शुरुआत होने जा रही है। Yes, there she goes. Would she be looking at 56.57? गोल्ड मेडल जाता हुआ क्या रिकॉर्ड बनने वाला है? 56.57। जी नहीं, गोल्ड मेडल उनके पास जाता हुआ श्रीवर्तिनी ने जीता है यहां पर सिल्वर मेडल। Her hurdling class, the sprint, and then finally the most important part, the finish. 58.11 सेकंड्स की टाइमिंग आई है विद्या रामराज की गोल्ड मेडल अपने नाम करने के। In particular, Anandi, Wonder Girl, Vidya Ramraj continues to keep on taking the gold at home. विद्या रामराज को गोल्ड मेडल, श्रीवर्धनी को मिला है सिल्वर और नेहा धबाले के नाम गया है ब्रॉन्ज मेडल। आभा खाटवा महाराष्ट्र के खिलाड़ी 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए थे, वहां पर इन्होंने 17.09 मीटर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ये है सृष्टि। In comes 664. This is Vidhi of Uttar Pradesh. Currently coming in second, 14.48. Her best. Spins around and in between the 14 and the 16 mark. It is a valid push, as they say, short put push. Vidhi of Uttar Pradesh. 449. जस्मीन कौर हैं पंजाब की। 2024 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चैंपियन ये रही थी और यहां नंबर 1 पर चल रही हैं 15.78 मीटर के साथ। 16 और ये है वैलिड थ्रो। It's defended our nation regularly, and there you are. मिलिंद, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तीनों आसपास यानी पड़ोसी राज्यों के बीच गया है शॉटपट के 3 मेडल। So the bronze goes to Vidhi the silver from UP and Jasmine Kaur. Starters in the men's 5,000 meters, which will be, I'm sure, another fascinating event. 7 Sikh regiment, as they now set off on this journey, the 12 starters and Lowpreet Singh, the ASI, BG Khadki. The services are extremely strong at the long distance events. These factors, the highest possible level of endurance, that's 1, 2 and 3. Yes, it is Savan Barwal and Kiran Matre, the 2 boys from the ASI, who have trained together for months together at the Army Sports Institute in Pune. Savan Barwal and Kiran Matre, when will they open out? Number 3 and number 4 look strong as well. The services started with 4 of them, although they represent different states. क्या वो टूटने वाला है? सावन बरवाल और क्लॉक के बीच एक जोरदार संघर्ष। क्या नया नेशनल गेम्स रिकॉर्ड बनने जा रहा है? यहाँ पर गंगा एथलेटिक ग्राउंड पर बहुत करीब हैं
बहुत करीब है सावन बरवाल, एक नया नेशनल गेम्स रिकॉर्ड बन गया है। Yes, yes. It says 13 minutes 45.90. Also go back, Savan Barwal 13 minutes 39.26 this season. So he's always the fancied boy out there. He did not achieve his season's best, but in the bargain, he did break. वो नए शब्द गढ़ते हैं और वो शब्द चैंपियन का कम पड़ता है इनके आगे। एक और चीज मिलिंद की अवेयरनेस कितनी थी कि नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और तोड़ दिया। Yes, here's the boy. That bib number 250 will be very dear to him. आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। आन बान शान ले। संजीवनी जाधव पर नजर रखिए। बिब नंबर 388 महाराष्ट्र से आती हैं संजीवनी जाधव। शुरुआत हो चुकी है संजीवनी जाधव। एशियन चैंपियनशिप 2017 भुवनेश्वर की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं इसी इवेंट की। If someone tells me, Anand, that between these two, one will win, I will not believe them with 4 laps to go. सिर्फ 600 मीटर की दूरी है यहाँ पर। One comes from the plains of India, Maharashtra, Nasik. The other comes from the mountains or the hills of the north of India, Almora in Uttarakhand. गोल्डन ग्लोरी में बदलने जा रही हैं उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी। गैप देखिए मिलिंद, गैप देखिए आप कितना बड़ा होता जा रहा है। अंकिता ध्यानी के नाम इस समय जाता हुआ 5000 मीटर का गोल्ड मेडल और संजीवनी जाधव बनी है सिल्वर मेडलिस्ट। और यहाँ पर सब साथ में थे, स्लाइट एडवांटेज लिया था वहां पर शुरू में सोनम ने दिल्ली की, उसके बाद ज्यादातर समय लीडर बोर्ड पर आगे चल रही थी संजीवनी जाधव। And she did not disappoint this crowd out here from Uttarakhand, which has turned out in large numbers. The hands go up. Sanjeevani Jadhav now comes into the picture. But certainly, as I keep on saying, representing Uttarakhand, please put your 5000 मीटर की स्वर्ण पदक विजेता उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी पौड़ी गढ़वाल की मरोड़ा गांव से आती हैं। बचपन में तंज सुनना पड़ा था इनके माँ बाप को कि लड़कों के साथ दौड़ती हैं, लेकिन आज एक बार फिर अपने राज्य को गौरवान्वित किया है। भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक्स में चुनौती पेश कर चुकी हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पदक लेना अपने आप में बड़ी उपलब्धि। अंकिता के नाम गोल्ड मेडल और ये तस्वीरें लंबे समय तक जहन में रहेंगी ये सभी विनर्स के। अंकिता ध्यानी के नाम गोल्ड मेडल, संजीवनी जाधव के नाम सिल्वर, पूनम सोनी के नाम ब्रॉन्ज मेडल। महिलाओं की 5000 मीटर रेस 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। And we thank our esteemed guest, Honorable Chief Minister, Shri Pushkar Singh Dhami ji. अब है विकास शर्मा उत्तराखंड के, 5वीं पोजीशन पर चल रहे हैं। विकास बहुत बढ़िया सराहनीय प्रदर्शन यहां पर विकास शर्मा का वैलिड थ्रो है ये 75-85 के बीचों बीच। रोहित यादव उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी अपने छठे अटेम्प्ट में जाना चाहेंगे।
80.47 के साथ दूसरी पोजीशन पर बने हुए हैं। और अगर गोल्ड चाहिए तो यहाँ सचिन यादव के रिकॉर्ड को ध्वस्त करना होगा। रोहित यादव, प्रयास बहुत बढ़िया था लेकिन 80 से काफी कम, यानी कि यहाँ पर सिल्वर मेडल से ही संतोष इन्हें करना पड़ेगा। सचिन यादव उत्तर प्रदेश के ये खिलाड़ी ऑल इंडिया पुलिस चैंपियन 84.39 के साथ यहाँ लीडर हैं, पहली पोजीशन पर गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। 84.39, broken the national games record. Can he do more? Everyone clapping for Sachin Yadav now. In he comes on the runway. Sachin Yadav, where does that go? Where does that go? Does it fly? It's in between the 75 and 85, but is that distance enough? Sachin Yadav breaking the national games record, 84.39. Sachin Yadav. Rohit Yadav with 80.47. The bronze medal going to Vikas Sharma. He knew it, that the record would be in his name. Here you go, Sachin Yadav. Next to him, Rohit Yadav. And on his left, that is Vikas Sharma. Sachin Yadav taking the honors in javelin throws men's final. Watch out for this name, Sachin Yadav. तेईस साल के आसपास की उम्र है इनकी और 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ये चैंपियन थे। अभिनया, ये भी क्लियर है। अभिनया एस शेट्टी, कर्नाटक की ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया। This is Pooja of Haryana. I beg your pardon, that's Pooja of Haryana. और ये है पूजा, 1.79 मीटर। डिफेंडिंग चैंपियन, 37th नेशनल गेम्स जो गोवा में हुए थे वहां पर 1.80 के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और यहां पर 1.81 बेस्ट इनका अभी तक का है। 1.80 यानी कि जो बेस्ट है, पर्सनल बेस्ट, उससे भी बेहतर करने की ज़रूरत यहाँ पर। 1.81 के लिए पहला प्रयास कर चुके हैं और पहला प्रयास फेल रहा था। दूसरे प्रयास के साथ एक बार फिर पोजीशन लेते हुए रनिंग स्टार्ट, और ये इस बार भी कामयाबी मिली नहीं। आसान नहीं होता है निकोलस। Look at that smiling away and sportsmanship spirit, not letting her bronze medalist and silver medalist away alone, taking photographs, and that's what a good sportsman is all about. जी हाँ, कॉम्पिटिटर हम होते हैं फील्ड में, लेकिन यहाँ पोडियम पर हम एक हैं। हम दर्शक पूरी तरीके से तैयार हैं आज के शाम के इस आखिरी इवेंट में, जिसमें बहुत जोरदार टक्कर होने की उम्मीद है। They set off here on this journey. Uttarakhand Vishu, Rahul in for Rajasthan, Manu for Kerala, Lovpreet for Punjab. श्याम आगे चल रहे हैं महाराष्ट्र के, और हरियाणा के दीपक। क्या दीपक पहला बैटन एक्सचेंज करेंगे? जी हाँ, दीपक, ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले दीपक बैटन एक्सचेंज करेंगे। जी नहीं, पंजाब ने अच्छा बैटन एक्सचेंज किया है। हंसा कौर, हंसा यहाँ पर, हंसा बाबू केरल की तरफ से, पंजाब की तरफ से किरण पाल कौर। इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। Oh, this is different. क्या गोल्ड मेडल बदलने वाला है? ओहो, गोल्ड मेडल ऐसा लगा कि महाराष्ट्र की तरफ चला जाएगा, लेकिन केरल के नाम गोल्ड मेडल। ओ, बहुत बढ़िया रेस।
seconds. You Kerala very wins the rarely get to gold. see this, but this Team was the moment. Maharashtra wins Look the at silver Aishwarya with Mishra. 3 God, 3 minutes, that was 25.66 absolutely seconds. close, wasn't And it? Team Punjab बहुत wins करीब the आ गई थी bronze महाराष्ट्र की with ऐश्वर्या 3 मिश्रा minutes, गोल्ड 26.35 मेडल अपने नाम करने seconds. की, लेकिन केरल की शायद अंसा बाबू को ये इल्म ही नहीं था कि ऐश्वर्या We मिश्रा will इतने be क्लोज हैं continuing उनके। with the medal Well, ceremony Kerala had now. built up that lead, so Aishwarya Mishra had to put in that much extra bit of energy. बहुत ही बढ़िया खेल आज नजर आया। आदित्य परब जो महाराष्ट्र के हैं ब्लू कॉर्नर में, उन्होंने जीत हासिल की। और ये देखिए आप पीठ थपथपा रहे थे, उनके पैर में थोड़ा सा चोट आई है हरियाणा के साहिल नारंग के, और जैसे ही थ्रो लगा था वो शायद सही तरह से लैंड नहीं हो पाए, और जिस कारण बॉडी कांटेक्ट हुआ। और ये एक और मुकाबला विशाल और यश के बीच। विशाल ने बहुत जल्दी इस मुकाबले को जीत लिया, पहले ही थ्रो में उन्होंने पराजित कर दिया था यश घंगस को, जो नेशनल चैंपियन है। ये वो थ्रो है जिसके माध्यम से गोल्ड मेडल आया है 100+ केजी वेट ग्रुप में। प्रयास में आगमन की आस में मेजबान आज उत्तराखंड ये आन बान शान ले शौर्य का प्रमाण ले गद्य सर्वश्रेष्ठ। ऋतिक सिंह यहाँ पर, और ये हाईलाइट 4 गोल्ड मेडल। और उसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल राउंड से ये मुकाबला शुरू हुआ था, उसके बाद क्वार्टर फाइनल और उसके बाद रिपीट चेस के भी मुकाबले हुए, फिर सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ। महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में दोनों, ये महिला वर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था जो आपके स्क्रीन पर है। वहां पर 2 ऐसी जुडिकास थी जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपने कौशल का मुजाहरा किया और पदक को अपने नाम किया। महाराष्ट्र नजर आ रही है समय ऑरेंज जर्सी में। दूसरी तरफ है कर्नाटक। इस वक्त दोपहर का समय है, हवा बिल्कुल शांत है और क्या विहंगम अद्भुत परिदृश्य। शुरुआत हो रही है समय। ये बड़ी कमाल की कप्तानी करते हैं देवेंद्र वाल्मीकि। मुझे पिछला मुकाबला याद आता है, शानदार खेला था इन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ जिस तरीके से, और हरियाणा जैसी टीमों के खिलाफ खेले थे। हरियाणा को 2-1 से जिस तरीके से मात दी थी, वो बड़े कमाल के खेल दिखाया था इन्होंने। और आखिरी में आक्रमण किया था, पूरे 3 क्वार्टर तक डिफेंस करते रहे थे, यानी पूरी 3 क्वार्टर तक विपक्षी थी। और ये यहाँ पर गोल, पहला गोल डाल दिया है महाराष्ट्र ने। शानदार डिफ्लेक्शन था। ये जर्सी नंबर 23 के प्रयास, और शानदार तरीके से जर्सी नंबर 16 भी मौजूद थे। तो फ्री हिट मिलता हुआ देवेंद्र सुनील वाल्मीकि तैयार हो रहे हैं, कप्तान महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र ने अपने प्रदर्शन से चौंकाया यहाँ पर कर्नाटक को। 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे इस वक्त सुनील। यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम चल रही है बेहतरीन। यहाँ वेंकटेश केचे का डिफ्लेक्शन, एक बार फिर यहाँ पर बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए, और पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा। यहाँ पर खतरे का बादल मंडराता हुआ यहाँ पर कर्नाटक के ऊपर कुछ समय के लिए जरूर। वैसे ही कर्नाटक की टीम 1 गोल से पिछड़ रही है। आदित्य लड़ाई का यह इंजेक्ट, सुनील वाल्मीकि यहाँ पर कोशिश, और यह दूसरा गोल होता हुआ महाराष्ट्र की तरफ से। कमाल कर दिया आज महाराष्ट्र ने। पहले ही क्वार्टर में क्या जवाबी हमले किए हैं शानदार तरीके से। महाराष्ट्र 2-0 की बढ़त पे। यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम के द्वारा वेंकटेश केचे इस वक्त तैयार, लेकिन पीछे सरका दिया वहां पर भरत के लिए। कर्नाटक समांतर पास डी के अंदर भेजने की कोशिश, और यहाँ गोल का इशारा। Have to check for it. Very close. Moves well and good. What kind of strategy is being applied here? और तारीफ करनी होगी कर्नाटक के खिलाफ जिस तरीके से डिफेंस अपनाया उन्होंने। जर्सी नंबर 30 कर्नाटक के एक अहम खिलाड़ी रहील मोहम्मद,
कप्तानी भी कर चुके हैं और नेशनल हॉकी इंडिया के सीनियर में एक बार सबसे ज़्यादा गोल करने का भी इनके पास रिकॉर्ड है। एक और सुनहरा चांस बनाया यहाँ पे और पेनल्टी कॉर्नर दे दिया अंपायर करणदीप ने और गोलकीपर पे फैनी निगाह है इस समय शिव रतन रसल पे। एसवी सुनील तैयार, बहुत ही अनुभवी यहाँ पर ये खिलाड़ी, जाबाज खिलाड़ी कहा जाए। कर्नाटक का इंजेक्ट करने को तैयार में इंजेक्ट किया गया, बॉल को रोका गया, ये ड्रैग आता हुआ और ये गोल, दूसरा गोल कर्नाटक ने डाल दिया है। क्या खूबसूरत परिवर्तन यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का गोल में विकास। 2-2 की बराबरी। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ हुआ। ये वो खिलाड़ी ड्रैग लिया जर्सी नंबर 12 ने, कमाल के खिलाड़ी हैं भरत मलिंगप्पा। भरत मलिंगप्पा के ड्रैग क्या लाजवाब। आइए नजर डालते हैं, पहले क्वार्टर में 2 गोल लगे, दूसरा क्वार्टर गोल रहित, तीसरे क्वार्टर में कर्नाटक के गोल आए और चौथे क्वार्टर में कर्नाटक का गोल। शूट आउट में मुकाबला कर्नाटक के लिए। एसवी सुनील पहला इस समय अटेम्प्ट लेने के लिए, जी हाँ शुरुआत हो गई है शूट आउट की। ओहो हो, गोल किया है एसवी सुनील ने, क्या शानदार बीट किया है इस समय। सडन डेथ में जो टीम लीड बनाएगी, अगर एक एक अटेम्प्ट के बाद जिनके पास लीड होगा वो जीत जाएंगे। पहला अटेम्प्ट महाराष्ट्र के कप्तान देवेंद्र वाल्मीकि। क्या यहाँ पे सडन डेथ में देवेंद्र वाल्मीकि, देखना होगा इस समय। बहुत शानदार माहौल, एक बार फिर से गोलकीपर शान मुनप्पा, मौका, समय निकल रहा है। देवेंद्र वाल्मीकि ने आखिरी सेकंड में खड़का दिया है गोल। महाराष्ट्र, अगर कर्नाटका जीतती है शान मुनप्पा का बड़ा रोल रहेगा, बड़ी अच्छी अगर बात करें भूमिका। ये है वो खिलाड़ी अब्राहम सुदेव भी जो इंजेक्शन के लिए गए हैं। अब्राहम इस वक्त बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए, धड़कने बढ़ती हुई इस वक्त यहाँ पर, और ये गोल डाल दिया अब्राहम ने। कर्नाटक फाइनल खेलेगी अब्राहम सुदेव वी के गोल के साथ ही कर्नाटक ने फाइनल में दावेदारी सुनिश्चित कर ली है। रेड कलर की जर्सी में पंजाब है, कमाल की टीम है ये भी, लेकिन दूसरी तरफ है एक और बड़ी टीम यूपी। और यहाँ पर इसके साथ खेल की शुरुआत हो गई है। इस बीच यहाँ बहुत पूर्वानुमान के साथ पंजाब के खिलाड़ी ने बॉल को निकालने की कोशिश की, अभी भी घूम रही है बॉल यहाँ पर डी के अंदर, और यहाँ पर फिर पेनाल्टी कॉर्नर दे दिया है मोहित रावत ने पंजाब के विरुद्ध। सौरभ आनंद ने कोशिश की, मौजूद थे उनके साथ गोपी सोनकर, पिछले मैच में गोल करके आए हैं गोपी सोनकर, और ये पैरों में बॉल टकराई। इंजेक्शन के लिए यहाँ पर विकास विष्णुकांत सिंह, लंबे कद के खिलाड़ी, जाबाज खिलाड़ी, कप्तान तैयार। यहाँ पर विष्णुकांत सिंह इस बार यहाँ पर गोल पोस्ट को निहारेगी, यहाँ पर इंजेक्ट, और ये यहाँ पर बेहतरीन गोल, सुंदर परिवर्तन पेनाल्टी कॉर्नर का गोल के अंदर। क्या खूबसूरत गोल बनाया यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने। यूपी ने लीड ले ली है, क्या कहने, शानदार तरीके से ये ड्रैग बीट करता हुआ जूनियर इंडिया के लिए खेल चुके शरदानंद तिवारी ने यूपी को 1-0 की बढ़त दिला दी है। They have done some great jobs. They have provided some visionary players, inspirational players, motivational players. He wants to go for the referral here. Moves from the left flank, switching it probably well and good. Long corner was started. It's a penalty corner. Injection, trap, and the drag. That's one more. That's the 4th goal. What an extreme great gameplay this has been. यकीनन तौर पर ये नजर आते उससे पहले इस समय पिछले अगर बात करें गोल पे, शानदार इंजेक्शन, बेहतरीन। 5 मिनट का समय बचा हुआ है और यह पंजाब के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है कहा जाएगा। ये डगर जो है बहुत आसान नहीं है यहाँ पर पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब उत्तर प्रदेश का डिफेंस भी बहुत मजबूत है। रक्षा पंक्ति की जो खिलाड़ी हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पंजाब के यहाँ पर एक मौका, लेकिन गेंद हाथ से टकराई, गेंद हवा में उठ गई कुछ ऊंचाई से, फलता यहाँ पे हवा ने करार दिया गया और फिर हिट अवार्ड किया गया उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ी राहत की बात यकीनन तौर पे उत्तर प्रदेश के डिफेंस। आइए नजर डालते हैं, लॉन्ग एरियल बॉल वहाँ पे कंट्रोल किया, बॉल डेंजरस तरीके से हवा में उछली, बॉल पोजीशन दिया गया इसीलिए यूपी के पास। यहाँ पंजाब के खिलाड़ी अंदर थे, प्रभजोत बड़ा कमाल के काबिल खिलाड़ी है प्रभजोत, देखना होगा यूपी अटैक पे, एक चिप शॉट, मौका यूपी के पास, बॉल रिबाउंड पे आई और गोल कर दिया यूपी ने, कमाल कर दिया। जर्सी नंबर 14, नाम है केतन कुशवाहा, सब जूनियर इंडिया खेला सितारा। देखिए किस तरह से यहाँ पर केतन आगे आए और यहाँ बढ़ाया था उनके साथी खिलाड़ी ने, और केतन ने डिफ्लेक्ट किया।
शानदार मुकाबला। अब यूपी धीरे धीरे अब जीत की तरफ, फाइनल खेलने की ओर अग्रसर समय काट रहे हैं। शानदार कोशिश है यूपी के खिलाड़ी की, क्या कहने। टीम के अहम खिलाड़ी विष्णुकांत सिंह मौजूद हैं। एरियल बॉल खेली उन्होंने, समय निकल रहा है और इसी के साथ यहाँ पे यूपी ने मुकाबले को जीत करके फाइनल में दावेदारी। शानदार हॉकी, पहला क्वार्टर 2-1 की बढ़त यूपी की, दूसरे क्वार्टर में भी 2 गोल, तीसरा क्वार्टर 1 गोल आया पंजाब से, चौथे क्वार्टर में 1-1 गोल दोनों टीमों ने किए और आखिरकार 5-3 के अंतर से यूपी ने मुकाबला फाइनल में पहुंच गई है सेमीफाइनल जीत करके। मीत कौसंबिया भारत के लिए अब तक सर्वोत्तम प्रदर्शन कर चुके हैं, भारत के लिए प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एक बड़ी मुस्कान चेहरे पर गुजरात के मीत कौसंबिया शुरुआत करते हुए। It's more than just breathing and staying alive. I have outrun it. It's a new dawn, it's a new day. Some things are different, but nothing has changed. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. This is my time, faster than ever, hungry and I'm going to come back and take what is mine, bigger and better. It's a new dawn, it's a new day. Some things are different, but nothing has changed. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन और सुंदर परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पर गुजरात के मीत कौसंबिया का। महाराष्ट्र के आर्या इस वक्त प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के आर्या, ये होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड के साथ आपको आना है परफॉर्मेंस करने के लिए। तैयार होते हुए महाराष्ट्र के आर्या, बेहतरीन शानदार शुरुआत। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र के आर्या शाह का। अनिकेत चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल के एरोबिक जिम्नास्ट इस वक्त तैयार होते हुए। एरोबिक जिम्नास्टिक्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जॉय। बहुत अच्छी शुरुआत अनिकेत चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल।
बढ़िया प्रदर्शन अनिकेत चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल। बहुत शानदार एरोबिक जिम्नास्टिक्स में प्रदर्शन करते हुए अनिकेत। और यह है एरोबिक मेंस फाइनल। तो जो उम्मीद कर रहे थे हम, मीत कौसंबिया बहुत बढ़िया प्रदर्शन 18.75 गुजरात के लिए। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। जिम्नास्टिक्स इंडिविजुअल वुमेन्स एरोबिक्स फाइनल शुरू हो गए। मणिपुर की अरिहा पंगम्बम अपना प्रदर्शन करने के लिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत ही बेहतरीन एटीट्यूड के साथ आई है। शानदार प्रदर्शन की शुरुआत मणिपुर की अरिहा पंगम्बम। बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई मणिपुर की मजीदा खातून, 3 टाइम नेशनल चैंपियन। बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन वेस्ट बंगाल की मजीदा खातून, महाराष्ट्र की गौरी ब्राह्मणे प्रदर्शन करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर स्ट्रैडल 2-2 के साथ उन्होंने शुरुआत की है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन महाराष्ट्र की गौरी ब्राह्मणे द्वारा। आन शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। एरोबिक मिक्स ट्रायो फाइनल। यहाँ पर टीम तैयार है। महाराष्ट्र बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आगमन करती हुई टीम महाराष्ट्र। बहुत अच्छी शुरुआत टीम महाराष्ट्र।
बहुत खूब प्रदर्शन यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम का। गुजरात तैयार है, बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं सारे लवर्स। गुजरात अपना परफॉर्मेंस शुरू करती हुई। कमाल का प्रदर्शन टीम गुजरात द्वारा। महाराष्ट्र स्कोर 17.45, मणिपुर 16.76, गुजरात 16.20। आन शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, कद्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। On your left, it is the team Haryana. On your right, it is SSCB, the gold medalist of Goa. And if we look at the current points tally, also with 42 goals sitting on the top of the points table comfortably, SSCB definitely comes in as a favorite, because their run into this final has been absolutely spectacular, defeating Uttarakhand in their table of 8, that is quarterfinals. And what a big margin that was, Prashant, 45 to 7 points. That tells you how dominant SSCB has been, and then obviously beating Bihar in the semi-finals. And here they are with 45-30. And Haryana, on the other hand, started off defeating Gujarat with a margin of 45 points to 36. कोई भी खेल हो, एटलीस्ट जीवन का कोई क्षेत्र हो, आपको स्टार्ट अच्छा मिलना चाहिए, और यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि अंतर को थोड़ा सा पाटा है, 4-3 स्कोर है। पहला राउंड टीम चैंपियनशिप फॉइल मेंस इवेंट 5-3 पहला राउंड यहाँ पर संपन्न हुआ, और इसको अपने नाम किया एसएससीबी के हेमाश सिंह ने। अंकित को 2 अंकों के अंतर से परास्त किया है। व्यक्तिगत मुकाबलों में देव थोड़ा सा पिछड़ गए थे, लेकिन यहाँ उन्होंने रिकवरी की गुंजाइश पैदा की है। उनके साथ ही अंकित केवल 3 पॉइंट ले पाए थे पहले राउंड में। देव अभी लगभग 1 मिनट का समय पूरा हुआ है। लीजिए, एक और पॉइंट उनके खाते में दर्ज हुआ। 4 अंक उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि उनके खिलाफ खेल रहे हैं डैनी सिंह। उन्हें केवल इस राउंड में 2 अंक मिले हैं। थोड़ा सा आगे बढ़कर खेलते हुए कॉन्फिडेंस उनके पास है। 2 मीटर लास्ट एरिया जो कहलाता है, वहां तक पहुंचाया। यहाँ अटैक था, लेकिन पॉइंट के लिए क्लेम कर रहे हैं, और जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 8वां अंक अर्जित कर लिया। इस्माइल खान ने जो किया था उसे आगे बढ़ाते हुए डैनी इस बार शोल्डर की तरफ गए। क्या पॉइंट मिला? जी हाँ, मिला। कमांडिंग पोजीशन में है और बहुत आश्वस्त हैं, बहुत निश्चिंत हैं। एक और पॉइंट, चैंपियनशिप पॉइंट के पास पहुंच गए हैं, लेकिन 45 अंक जीत के लिए चाहिए होते हैं। लीजिए जीत दर्ज की, निर्णित हुआ ये मुकाबला। गोल्ड मेडल हासिल किया हरियाणा की टीम ने। So moments away from the last final of the day, here is Jammu Kashmir versus Haryana, and now here they are up against the Union Territory of Haryana, Union Territory of Jammu Kashmir actually. Just early clinking and clashes of the swords and waiting for the opportunity.
Sufyan Wahid has been really impressive, winning silver medal as far as the individual men's FA is concerned. And Prashant, obviously, Jammu and Kashmir squad sending their best player and the in-form player. 1 minute 45 seconds remaining. Haryana believes they've got the point, and they did. They did have it at 23-20. Wahid Sufyan is looking a tad bit exhausted here. Prashant, as we move in closer to this is 7th round. After this, there are only 2 rounds. 6 more minutes of deciding that who will be on the top of the podium. Will it be Haryana with his 3rd goal here on the 4th day of fencing event in Haldwani, or will it be the debutant Jammu and Kashmir? E&K, Sufyan still not giving up, looking for an opportunity. Can he land a couple of more successfully? Put pressure on Haryana. Another point here. Haryana has done it for itself. The 3rd goal of the day here in Haldwani. Unbelievable record. Women's saber. शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, कत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। आठ टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। K2 500 मीटर वुमेन्स, लेन 1 में छत्तीसगढ़, लेन 2 में उड़ीसा, लेन 3 में मध्य प्रदेश, लेन 4 में उत्तराखंड, लेन 5 में हरियाणा, लेन 6 में अंडमान एंड निकोबार, लेन 7 में मणिपुर, लेन 8 में पंजाब। K2 मतलब होता है इसमें एक बोट में 2 कयाकर होते हैं जिनको मिलकर इस रेस को पूरा करना होता है। और ये अंपायर का गो का इशारा, सारे खिलाड़ी निकल चुके हैं स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक की दौड़ के लिए। लेन नंबर 2 में उड़ीसा की विद्या देवी और विनीता चानू। देखना होगा कौन स्वर्ण पर अपना कब्जा जमाता है। इस समय 4 नंबर की उत्तराखंड की सोनिया देवी और रोजी देवी करीब आधा बोट लेंथ से लीड लेती हुई। यहाँ से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये तगड़ी टक्कर 4 नंबर लेन, 3 नंबर लेन और 2 नंबर के बीच होने जा रही है। 4 नंबर की लेन ने पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत बढ़िया रेस रही। 500 मीटर की K2 वुमेन्स अभी आपके सामने संपन्न हुई। आज कैनोइंग कैकिंग का दूसरा दिन है इस 38वें राष्ट्रीय खेलों में। इस उत्तराखंड देवभूमि के टिहरी झील, और ये गो का कमांड मिलते ही सारे खिलाड़ी अपनी स्टार्टिंग लाइन से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ निकले हैं। इस समय लेन नंबर 4 SSCB की टीम कुछ बढ़त लेती हुई नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगी। नजर रखने वाला है सर्विसेज और उड़ीसा की टीम। सुंदर पानी, अनुकूल वातावरण खिलाड़ियों के लिए, पूरा दमखम लगाते हुए खिलाड़ी। लेन नंबर 4 पे नज़र रखिए, लेन नंबर 5 पे रखिए। फिनिश लाइन आते आते कुछ भी हो सकता है। पैडलिंग रेट इन्होंने बढ़ा दिया है। देखना होगा कौन फिनिश लाइन को पहले टच करता है, कौन स्वर्ण पदक को हासिल करेगा। 250 मीटर का मार्ग पार करते हुए सारे खिलाड़ी। देखना होगा आखिरी 100 मीटर में क्या कमाल करती है सर्विसेज टीम, पूरी ताकत लगाती हुई। लेकिन इस समय जो दिख रहा है उसके हिसाब से यही है कि SSCB की टीम लेन नंबर 4 में है, उसने पहला स्थान प्राप्त किया है। लेकिन फिर भी ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार रहेगा। And that will be Pilana Goela versus Mahesh in the red corner from Telangana State versus Karnataka. लगातार दांव यहाँ पर जिस तरह से खेल रहे हैं महेश, 2 और अंक क्या यहाँ पर जुटाएंगे बहुत जल्द ही। 1 मिनट का खेल हो चुका है और इन 1 मिनटों में जिस तरह से आक्रामकता महेश ने यहाँ पर दिखाई है, कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी खिलाड़ी को पूरी तरह से धाराशायी कर दें। और क्या अंक आएंगे यहाँ पर, दांव बना रहे हैं लेकिन उस तरह से प्रयास अंकों में तब्दील नहीं हो रहे हैं। आपको सही दांव लगाना है, सटीक दांव लगाना है। और जिस तरह से
येलो जोन के बाहर यहाँ पर ढकेला। 1 अंक बटोरा जरूर है तेलंगाना के खिलाड़ी ने, लेकिन महेश कोशिश काफी की है महेश ने, लेकिन उन तमाम कोशिशों को अंकों में तब्दील नहीं कर पाए हैं। और इस 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में, जो कि इस समय उत्तराखंड में चल रही है, रोशनाबाद का यह इंडोर स्टेडियम, और एक कोशिश, एक और अंक आता हुआ। Some final thoughts coming in from the coach of Telangana, who is just sitting at the edge of this huge infrastructure here, of this mat here in this wrestling competition. And there you go, and Pilan Goila. Oh no, it's Mahesh getting grabbed by the leg, one leg up in the corner. There will be points coming in, 5 points, like a crab, rotating, rolling him. Oh, more points coming in for Pilan Goila. Make it 5, make it 7 now. Can he twist him again? Can he just outpour him and make him go completely on the back? It's a double leg attack now. Oh, he's moving, inching. Can he again just flip him? There you go. The arms, and be very, very mindful of not doing something which might just go against. Oh, what a showdown! What a wonderful showdown! This is 2 points coming in now, as I can see the judge just lifting one of his armory in the blue corner, and now that's getting up there. That is an yellow card being given to Mahesh for infringement and for breaching the rules. Sometimes you just say the technicality, the superiority is so hugely being I'd say these are more of bonus technicality, superiority. उत्तराखंड के अभिषेक हैं तो सर्विसेज के मोहित इस समय ब्लू कॉर्नर पर हैं। एक दूसरे का परीक्षण तेज तरार अंदाज में यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल शुरुआती समय में करेंगे, और जैसे ही मौका मिलेगा वो तकनीक, व दांव, व बल यहाँ पर लगाते हुए दिखलाई पड़ेंगे खिलाड़ी। मोहित कोशिश कर रहे हैं, और वह पैसिविटी जोन में जिस तरह से उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, 1 अंक आता हुआ मोहित के नाम पर। अब अभिषेक बार बचे, अब दांव में फंसे हैं, यहाँ पर अंक आता हुआ 2 मोहित के नाम पर। टेक डाउन जिस तरह से लिया है, अब दोबारा वही प्रयास करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के पहलवान। लेग अटैक करना चाह रहे हैं, पीछे आने का प्रयास है उनका। पीछे आने में कामयाब हो पाते हैं क्या सेना के पहलवान? बिल्कुल उनको पीछे नहीं आने दे रहे, और यहां पर अपनी आत्मरक्षा करी सेना के पहलवान ने, मगर पीछे आने के लिए पूरी तरह से कारगरता सिद्ध करी और 2 अंक सुनिश्चित कर रहे हैं खेमे की। यहां पर फीतले बांधने का प्रयास है उनका, क्या फीतले बांध पाएंगे? यदि अगर फीतले बांध पाते हैं तो यहां पर रोल किया, नहीं, फीतले की पोजीशन अभी पूरी नहीं आई थी सेना के पहलवान ने, और यहां पर अपने अतुल्य साहस के साथ उत्कृष्ट खेल कौशल को प्रदर्शित करते हुए सेना के पहलवान ने इस मुकाबले को उत्तराखंड के विरुद्ध जीत लिया। मेजबान आज उत्तराखंड ये आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, विगत सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। Most of the games from different cities in Uttarakhand have finished up, and that's why our focus is mostly on wrestling at the moment. It's the Greco-Roman category, the final. In the red corner, it's Rajasthan, it's Shagan and Karan from Services Sports Control Board. On paper, you can easily say that Services Sports Control Board has an upper hand, and they are doing it more rightfully. And look at the tactics coming in. First on legs, now grappling right from behind, getting right on top, like he is getting those points. He will be getting it 2, not 2 but 4. And as just 1.5 minutes just goes by, it's the breakdown, it's the takedown that he wants to see. Now a couple of points more coming in, make it 6 immediately. और कोशिश यही उनकी होगी कि जल्द से जल्द
और कुछ अंक बटोर कर वे यहाँ पर मुकाबला अपने नाम पर करे। राजस्थान के खिलाड़ी छगन जो कि रेड कॉर्नर पर हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्विसेज की ओर से प्रयास, और ये क्या अंक आएगा रेड कॉर्नर के लिए। 2 अंक यहाँ पर आता हुआ तैयार हो रहे हैं। दूसरे राउंड की शुरुआत की इशारा यहाँ पर आता हुआ, और ऐसा लगता है कि राजस्थान के छगन थोड़ा सी तेज शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा आक्रामक शुरुआत करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं अंकों के मामले में जिस तरह से वे पिछड़े हुए हैं। कोशिश यहाँ पर, लेकिन करण जिस प्रकार से यहाँ पर रोके हुए हैं। ग्रीको रोमन का यह अंतिम मुकाबला है 77 किलो वर्ग भार में। इस समय मैट पर पैरों का इस्तेमाल आप दांव पेच के लिए कर नहीं सकते। कमर के ऊपर आप शरीर का हिस्सा दांव पेचों में कर सकते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है दांव पेच को खेलने में, परखने में, और उस शक्ति के लिए, उस ताकत के लिए, उस ऊर्जा के लिए जो आप मैट पर दिखाते हैं। इस बार यहाँ पर क्या 4 अंक आएंगे करण के लिए? जी हाँ, 4 अंक यहाँ पर आते हुए सर्विसेज के खिलाड़ी करण के लिए। कुल मिलाकर अंकों के आधार पर और यह विजेता यहाँ पर सर्विसेज के खिलाड़ी करण को यहाँ पर घोषित किया गया है। की आस में मेजबान आज उत्तराखंड, ये आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, विगत सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। तो इस समय मैट पर फिर एक बार मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। कांस्य पदक का मुकाबला जिस तरह से अभिमन्यु यहाँ पर मैट पर रेड कॉर्नर पर नजर आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की ओर से अनुज जो कि ब्लू कॉर्नर पर है। शुरुआत काफ़ी अच्छी। ग्रीको रोमन का यह कांस्य पदक का मुकाबला, और जिस तरह से यहाँ पर दांव रचे जा रहे हैं पंजाब के खिलाड़ी, 2 अंक यहाँ पर आता हुआ पंजाब के खिलाड़ी के लिए। और टेक डाउन जिस तरह से लिया गया है, क्या कुछ और अंक यहाँ पर बटोरे जाएंगे? लेकिन येलो जोन के बाहर जिस प्रकार से यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी पहुँचे थे, रेफरी ने मना किया, चेताया और मैट पर आने की पुनः यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों को मैच की शुरुआत करने के लिए कहा है। तो फिर एक बार यहाँ पर शुरुआत होती हुई मैट के मध्य में पंजाब के अभिमन्यु बनाम उत्तर प्रदेश के अनुज के बीच में मुकाबला इस समय चल रहा है। कांस्य पदक का मुकाबला है। ग्रीको रोमन 97 किलो वर्ग भार में मुकाबला इस समय चलता हुआ। और पंजाब ने जिस तरह से शुरुआत की है, 2 अंक यहाँ पर बटोरे हैं शुरुआती समय में, और कुल मिलाकर प्रयास और कर रहे हैं कि कुछ और अंक यहाँ पर बटोरे जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अनुज कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा। पंजाब बनाम उत्तर प्रदेश के बीच में मुकाबला। समय जिस तरह से बीत रहा है, 1 मिनट का समय शेष है। पंजाब के खिलाड़ी क्या यहाँ पर टेक डाउन, 2 अंक का मौका क्या बनाया है? जी हाँ, और यहाँ पर जिस तरह से मुकाबला समाप्त किया, तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जिस तरह से यह मुकाबला पंजाब के खिलाड़ी ने अपने नाम पर कर लिया। And this is so good to see, isn't it? The bronze medal match in the red corner, Abhimanyu from Punjab emerging victorious. Abhimanyu, Gulab Singh from Punjab.
it's the final, and it's the final of the Greco-Roman 97 kilogram at the moment here. At the moment, it's Delhi in the blue corner, and I still have the services of Mr. Sanjeev Gupta. खेल रुकना नहीं चाहिए, खिलाड़ी अपने खेल कौशल को निष्पक्षता पूर्ण करता रहे। और प्रयास अच्छे, तेजी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास और बाहर की ओर धकेलना चाह रहे हैं, मगर सेना के पहलवान ने भी बड़ी मजबूती से अपने आप को रोकने का प्रयास किया। 2 अंक प्रदान किए गए, यहां पर 3-0 का स्कोर हो गया। अब सेना के पहलवान, बहुत ही सुंदर खेल कौशल, और यहां पर दिल्ली के प्रशिक्षक दिखाई दिए थे स्क्रीन पर। अब पूरी तरह से रेफरी द्वारा चेताया गया कि आपको मुकाबला सही ढंग से खेलना होगा। दिल्ली के पहलवान को कॉशन दिया गया, नियमानुसार ही खेलें, नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको वार्निंग दे दी जाएगी। प्रयास अच्छे हैं, लगातार अपने दमखम को प्रस्तुत करते हुए। भारी वजन वर्ग है, कुछ ही क्षण शेष हैं और ये मुकाबला पूरी तरह से सेना ने अपने पक्ष में कर लिया है। स्वर्णिम सफलताएं जरूर दिलाएंगे दिल्ली के विरुद्ध। Yes, absolutely correct, Mr. Sanjeev. Just some moments to go for the final hooter to now come up, and it will be all services sports control board to be emerging with the gold medal in their category. Just 20 seconds to go by, and it's all about just biding the time in the middle until and unless there is some huge uproar coming in from the red corners, from the blue corner. Naman Anup Singh from Delhi will it's just about just counting of the single figures on the clock now. It will be the final showdown. The final hooter will be coming up. There we go, all claps. बिल्कुल तालियों से स्वागत किया गया है इस पहलवान का, जिसने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल को प्रदर्शित किया और ग्रीको रोमन स्टाइल में इन्होंने स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं। निशान ले, शौर्य का प्रमाण ले, इकट्ठे सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक